زلزلے نے بلوچستان کے مختلف علاقوں میں تباہی مچا دی۔ 9 بچوں سمیت 24 افراد جاں بحق، 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ متعدد افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کا خدشہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ ارنائی میں بڑے پیمانے پر تباہی، مکان ملبے کا ڈھیر بن گئے۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث کئی علاقوں سے رابطہ منقطع۔ زلزلے کا مرکز ارنائی کے قریب 15 کلومیٹر گہرائی میں تھا۔ آفٹر شاکس کا سلسلہ جاری، کوئٹہ اور ارنائی کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ۔ پاک فوج کے دستے زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں پہنچ گئے۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ بلوچستان میں زلزلے سے متاثرہ علاقوں میں امدادی سامان اور خوراک منتقل، طبی عملے، پیرامیڈکس اور سول انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم کا بلوچستان میں زلزلے سے جانی و مالی نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کہتے ہیں کہ زخمیوں کی طبی امداد کے لیے تمام ذرائع بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ پنجاب نے بلوچستان حکومت کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش کر دی۔ ہوٹکی میں زمین کے تنازع پر 2 گروپس میں تصادم، فائرنگ کا تبادلہ، 3 افراد قتل، 1 شدید زخمی، ملزمان موقع سے فرار ہو گئے۔ سفاکیت کی انتہا، ناقلب بیٹے نے اپنی جنت اجاڑ لی۔ ٹھل کے نوائی گاؤں میں بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کر دیا۔ سفاک بیٹے نے نقدی اور زیورات نہ دینے کی رنجش پر ماں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ خون سفید ہو گیا، بورے والا کے نواحی گاؤں میں بیٹوں کا بوڑھی ماں پر بہیمانہ تشدد۔ بدبخت بیٹوں نے ڈنڈوں کے وار کر کے ماں کو لہولہان کر دیا۔ زخمی خاتون اسپتال منتقل، پولیس نے تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تیز رفتاری جان پر بھاری پڑ گئی، ڈی آئی خان میں کار اور ڈمپر میں خوفناک تصادم، 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مہنگائی کا سونامی عوام پر ٹوٹ پڑا، مہنگائی کا راج، سبزی، انڈوں اور برائلر کے دام پھر بڑھا دیے گئے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا طوفان، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ، عوام سر پیٹ کر رہ گئے۔ کورونا کی چوتھی لہر کا زور ٹوٹنے لگا، ملک میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 2.82% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 1453 کورونا کیسز رپورٹ، جبکہ عالمی وائرس مزید 46 زندگیاں نگل گیا۔ پنجاب میں اسموگ پر قابو پانے کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی گئی۔ حکومت پنجاب نے مختلف اشیاء کی باقیات جلانے پر 1 ماہ کے لیے پابندی لگا دی۔ فضا کو اسموگ سے بچانے کے لیے پرانے ڈیزائن کے بھٹوں کو بند رکھا جائے گا۔ کنڈو جام کے قائم واحد پولی ٹیکنیکل کالج کی عمارت خستہ حالی کا شکار، چھتوں کے پلستر اکھڑ گئے، طلباء خوف میں مبتلا، اساتذہ کی عدم تعیناتی کے سبب طلباء کو مشکلات کا سامنا۔ محکمہ شاہراہ کی لاپرواہی، منڈی بہاؤالدین کی سڑکیں ٹریفک سگنل سے محروم، ٹریفک جام رہنا معمول، شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ میونسپل انتظامیہ کی لاپرواہی، حاصل پور کے برساتی نالے ناکارہ، بارش کے باعث سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں، شہریوں کے لیے آمد و رفت محال ہو گئی۔ رنگین چارپائیاں پنجاب کی ثقافت کا اہم جز، خوبصورت اور دلکش چارپائیاں پنجاب کی پہچان ہیں۔ رنگین چارپائیاں گھروں میں آج بھی انتہائی مقبول ہیں۔
मिंजो आबशार जूही के नवाही इलाके गाजी शाह का खूबसूरत तफरीही मकाम, पहाड़ों की बुलंदी से बहने वाला खूबसूरत चश्मा आज भी रवा दवा। सरमा में मकीनों समेत सयाह बड़ी तादाद में चश्मे का रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूँ एतजाज़ नकीब। दुआ है रब करीम आक़ाए दो जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। हरनाई में ज़लज़ले से कई मकानात मुनहदिम हो गए, जबकि कई अफराद जान की बाजी हार गए। उमर फारूक की रिपोर्ट। बलूचिस्तान में ज़लज़ले के शदीद झटके। गुज़िश्ता रात बलूचिस्तान में आने वाले ज़लज़ले ने हरनाई में तबाहियां मचा दी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 5.9 रिकॉर्ड की गई, जबकि ज़लज़ले का मरकज़ बलूचिस्तान का इलाका हरनाई था। ज़लज़ले के बाद से इलाके में ज़िले इंतज़ामिया और FC बलूचिस्तान की जानिब से इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला भी जारी है, जबकि पाक फौज के जवानों की जानिब से हेली के जरिए शदीद जख्मी होने वाले अफराद को कोयटा भी मुंतकिल किया जा रहा है। कोयटा, सिब्बी, दुकी समेत दीगर इजला में भी रात गए ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। कैमरा टीम के साथ उमर फारूक, सच न्यूज़ सिब्बी। पाक फौज मुल्क के दिफा के साथ अवामी खिदमत में भी पेश। पाक फौज के दस्ते ज़लज़ले से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों के लिए पहुंच गए हैं। मुतासरा इलाकों में ज़रूरी खुराक और शेल्टर का सामान भी पहुंचा दिया गया है। पाक फौज की शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपने साथ जरूरी अद्वियात लेकर मुतासर इलाकों में पहुंच चुके हैं। जरूरी तिब्बी सहूलियात के लिए शहरी इंतजामिया की मुआवनत की जा रही है। शदीद जख्मी 9 अफराद को आर्मी हेलीकॉप्टर्स पर कोयटा पहुंचाया गया है। ISPR के मुताबिक IGFC बलूचिस्तान नॉर्थ भी हरनाई पहुंच चुके हैं। वो नुकसानात और रिस्पांस का खुद जायजा ले रहे हैं। रावलपिंडी से अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू टीम को मौके पर भेजा जा रहा है। ये टीम रेस्क्यू के कामों की रफ्तार को तेज बनाएगी। हासिलपुर में बरसाती नाले नाकारा हो गए। बारिश के बाद सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमद और रफ्त में मुश्किलात का सामना है। जानते हैं सैयद मुबारक अली शमसी की इस रिपोर्ट में। शहर में पानी की निकासी के लिए बनाए गए बरसाती नाले अरसा दराज से इंतज़ामिया की नाअहली और गफलत की वजह से बंद पड़े हैं। शहर में जब भी बारिश आती है तो पानी कई दिन सड़कों पर जमा रहता है। मुसलसल पानी के खड़े होने की वजह से अंदरूने शहर की सड़कें टूट चुकी हैं और शहरियों को गुजरने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। शहरियों ने मुतअद्दिद बार मकामी इंतज़ामिया को दरख्वास्तें भी गुजारी, मगर ताहाल कोई सुनवाई न हुई। जो भी शहर के इर्द गिर्द बरसाती नाले बनाए गए थे वो तमाम टूट फूट का शिकार हैं और टूट फूट की वजह से बिल्कुल बंद हो चुके हैं, जिनकी वजह से जब भी बारिश होती है तो बजाय पानी की निकासी के पानी रोडों पे खड़ा हो जाता है। शहरियों ने वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार और DCO बहावलपुर से पुरजोर मुतालबा किया है कि वो इनका निकासी आब का ये देरीना मसला हल करें। कैमरामैन अमजद अब्बासी के हमरा सैयद मुबारक अली शमसी, सच न्यूज़, हासिलपुर। मुबारकपुर से मिलाने वाली रेलवे स्टेशन रोड खस्ता हाली का शिकार हो गई। शहरियों को आमद रफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाका मकीनों ने इंतजामिया से सड़क की मुरम्मत करने का मुतालबा कर दिया। यासिर नाज की रिपोर्ट। मुबारकपुर शहर को दूसरे शहरों से मिलाने वाली रेलवे स्टेशन रोड कई अरसे दराज से शदीद टूट फूट का शिकार है, जिसके बायस ट्रांसपोर्टर को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है और अक्सर ट्रैफिक फंसना मामूल बन चुका है। इस इलाके के तमाम हुकूमती नुमाइंदों ने सड़क पर सियासत की और बड़े बड़े वादे किए और खूब सब्ज बागात दिखाए, लेकिन अभी तक कोई वादा वफा न हो सका। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज़, मुबारकपुर। मंडी बहाउद्दीन की सड़कें ट्रैफिक सिग्नल से महरूम हो गई। ट्रैफिक का जैम रहना मामूल बन गया, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इरफान वड़ाज की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन को 30 साल कबल जिला की हैसियत तो मिल गई, लेकिन अरबाब इख्तियार ने इसके मसाइल पर तवज्जो न दी, बल्कि हर दौर में आवाम को सबज बाग दिखाकर वोट हासिल करके इनको मसाइल में धकेलते रहे। 30 सालों के दौरान ट्रैफिक सिग्नल तक किसी चौक में नस्ब न हो सका, जिसके बायस बेहंगम ट्रैफिक का हर चौक और आम बाजारों में जाम रहना मामूल बन चुका है। शहर समेत किंग चौक, सातसिरा चौक, कॉलेज चौक, प्रेस क्लब रोड, जनूबी गेट, ओल्ड DHQ अस्पताल और बाजारों में ट्रैफिक पुलिस की नायाली गफलत के बायस ट्रैफिक कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकामी ने
ان की कारकर्दगी का पोल खोल दिया है। यहाँ तक कि 30 साल के तवील अरसे में ट्रैफिक पुलिस एक लिफ्टर तक रसाई हासिल ना कर सकी। बच्चे मोटरसाइकिलों और रक्शों को चलाते हुए तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर आए रोज खतरनाक हादसात का बायस बन चुके हैं। इंतजामी नाअहली अपने रूज को पहुंच चुकी है। स्पीड ट्रैफिक अपने अमला समेत ख्वाब खरगोश का मजा लूट रहे हैं, जबकि शहरी ट्रैफिक पुलिस अमला की गफलत का खमियाजा कीमती जानों की शक्ल में देने पर मजबूर हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ैच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। सिंध के शहर नारा के अवाम सैर तफरी की सहूलत से महरूम हो गए। नारा में बल्दियात हुकाम की लापरवाही का पोल खुल गया। अवाम की सैर तफरी के लिए करोड़ों रुपए की लागत से बनाया जाने वाला पब्लिक पार्क इंतजामिया की अदम दिलचस्पी के बायस जंगलात का मंजर पेश करने लगा। बच्चे खेलने के लिए पार्क में तो आते हैं, मगर पार्क में ना तो पीने का पानी है, ना ही बैठने का कोई इंतजाम। डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल ने रुझान का दौरा किया, तमाम तर सहूलियात का जायजा लिया। रुझान में डीपीओ राजनपुर मोहम्मद अफजल ने वैनु सूबाई चेक पोस्ट शाहवाली का विजिट किया। जदीद सिक्योरिटी सिस्टम, SPAS और CCTV कैमरे के जरिए चेकिंग का जायजा लिया। चुनिया में असिस्टेंट कमिश्नर ने गैर कानूनी गैस रिफिलिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जिम्मेदारान के खिलाफ भारी जुर्माने आयद और मुतादिद दुकानें सील कर दी गईं। डिप्टी कमिश्नर कसूर की खुसूसी हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर चुनिया ने गैस रिफिलिंग करने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की है। दादू के नवाई इलाके फलजी स्टेशन का सरकारी स्कूल की इमारत खस्ताहाली का शिकार हो गई। इमारत किसी भी वक्त हादसात का सबब बन सकती है। शहरी स्कूल की इमारत की मुरम्मत न होने पर सरापा एहतजाज हैं। शुएब तहीम की रिपोर्ट। सिंध हुकूमत की जानिब से तालीमी इदारों में इमरजेंसी नाफिज करके तालीम की बेहतरी के बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जिला दादू में बच्चों का मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। दादू के इलाके फुलजी स्टेशन का गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का शिकार है। स्कूल का मरम्मती काम न होने की वजह से क्लास रूम में बच्चों के ऊपर छत का मलबा गिरना रोज का मामूल बन गया है। पूरी बिल्डिंग जो है ना वो डेंचर से, तो कभी कभी मलबा भी गिर जाता है, तो हम खौफ में रहते हैं और मेरे स्टूडेंट भी खौफ में रहते हैं। स्कूल की तालिबात ने बताया कि इस जदीद दौर में भी वो खस्ता हाल स्कूल की इमारत तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। चंद रोज कबल क्लास रूम की छत का मलबा गिरने से 4 तालिबात जख्मी हुई हैं। अब पढ़ाई के दौरान डर लगता है कि किसी भी वक्त बड़ा हादसा पेश आ सकता है। 4-5 दिन पहले 3-4 लड़कियां जख्मी हुई थी और फिर हमने दरख्वास्त भी दी है ऊपर, फिर नहीं कुछ एक्शन लेते, फिर हम क्या करें। खस्ता हाल गर्ल्स हाई स्कूल की इमारत का मरम्मती काम न कराने के खिलाफ स्कूल की तालिबात एहतजाज करने पर मजबूर हैं। टंडू जाम में कायम वाहिद पॉलीटेक्निकल कॉलेज की इमारत खस्ताहाली का शिकार है। छतों के पलस्तर उखड़ गए, तुलबा में खौफ व हरास फैल गया, जबकि असातिज़ा की अदम तैनाती के सबब तुलबा को मुश्किलात का सामना है। टंडू जाम से जुनैद अली भट्टी की रिपोर्ट। टंडो जाम में कायम तालका हैदराबाद देही का वाहिद मोनो पॉलीटेक्निकल कॉलेज बिल्डिंग जो के मीरपुर खास हैदराबाद रोड पर कायम गुज़िश्ता 20 सालों से तबाहाली का शिकार है। बिल्डिंग की पहली मंजिल पर मौजूद 3 क्लासें रूम व 3 लेबॉर्ट्री और दूसरी मंजिल पर कायम तमाम 10 कमरे टूट फूट का शिकार है। बिजली का निजाम तबाह हो गया है, जबकि पहली मंजिल पर सिर्फ 6 कमरे में मौजूद लेबॉर्ट्री व स्टाफ के 2 कमरे काबिल इस्तेमाल है। सिंध हुकूमत से दरखास्त है कि यहाँ पे रिपेयरिंग कराई जाए। बिल्डिंग मुकम्मल तौर पे खस्ता हाल है, इसकी जो छत है वो भी खस्ता है और जो पानी की टंकी है वो भी खस्ता हाली का शिकार है। कॉलेज के तुलबा का कहना है कि टेक्निकल कॉलेज का वाहिद उस्ताद मेहनत से तालीम दे रहा है, मगर असातिज़ा की कमी को हल किया जाए, नए असातिज़ा रखे जाए। बिल्डिंग जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, इसकी मरम्मत करवाई जाए। तुलबा को तालीम हासिल करने के दौरानिया खौफ आता है, जबकि पीने का साफ पानी भी मुयसर किया जाए। तुलबा ने सिंध हुकूमत से मुतालबा किया है कि मोनो टेक्निकल कॉलेज की बिल्डिंग जो ज़बू हाली का शिकार है, इसे मरम्मत करवाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद शरी मिट्टू के साथ जुनैद भट्टी, सच न्यूज़, टंडो जाम। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। मियांवाली के नवाई इलाके कुंदिया में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया। सीवरेज का पानी घरों में दाखिल होने लगा, जिसके बायस इलाका मकीन शदीद परेशानी में मुब्तला है। अमीर अकबर कलियार की रिपोर्ट। टाउन कमेटी कुंदिया की अमला सफाई ने बेहसी की इंतहा कर दी। कुंदिया के महल्ला नक्शबंदी के मकीनों ने तबाहशुदा सीवरेज सिस्टम से तंग आकर अपनी मदद आपके तहत पैसे जमा करके सफाई के लिए अमला सफाई को दिए। अमला ने गली में गहरे गड्ढे खोद डाले और पैसे लेकर मौका से रफू चक्कर हो गए। 5 रोज गुजर जाने के बावजूद अभी तक ना तो सीवरेज लाइन को साफ किया गया है और ना ही गड्ढे बंद किए गए हैं। अहले मोहल्ला इस सूरत हाल से शदीद परेशानी का शिकार हैं। अहले मोहल्ला ने DC मियांवाली से सख्त नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अमीर अकबर कलियार, सच न्यूज़, कुंदिया। कोहाट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के साथ साथ अशियाए खुरनोश की कीमतों को भी पर लग गए। बढ़ती महंगाई ने गरीब आवाम का जीना महाल कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। अली बंगश की रिपोर्ट।
पेट्रोल की कीमतों से रोजमर्रा शे खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफे के साथ साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों और दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक तब्दीली सरकार की जानिब से पेट्रोल मसनूआत में बार बार बेपनाह इजाफे को आवाम ने मुस्तरद कर दिया और कहा कि पेट्रोल मसनूआत में इजाफा नहीं, आवाम पर पेट्रोल बम गिराया गया है। आवाम पहले ही महंगाई, बेरोजगारी और बदहाली का शिकार है। आए दिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद औगुरा जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा कर देता है। गुज़श्ता 32 से 33 दिनों के दरमियान 2 मरतबा इजाफा हुआ है। इसका सारा असर, ज़्यादातर असर जो है वो अशियाए खुर्दोनोश पे पड़ता है। आवाम ने पेट्रोल मसनूआत में बार बार इजाफे को मुस्तरद करते हुए तब्दीली सरकार से फैसला वापस लेने और आवाम को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। अली बंगश, सच न्यूज़ कोहाट। आरिफ वाला में महंगाई का सुनामी आ गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो चुकी है। 3 दिनों में ब्रायलर गोश्त की कीमत में 60 रुपए फी किलो इजाफा कर दिया गया। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। आरिफ वाला अशियाए खुर्दोनोश, घी, चीनी, दालें और आटे में जहां हर रोज इजाफा हो रहा है, वहीं शहरी ब्रायलर गोश्त की कीमत में इजाफे से बहुत ज्यादा परेशान है। 3 दिनों में गोश्त का रेट 50 से 60 रुपए बढ़ चुका है। महंगाई कंट्रोल में नहीं आ रही, सिर्फ हुकूमत दावे कर रही है। इस बारे में शहरियों का सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना है, इस वेले भी 350 रुपए रेट है। अगर असी लेके आने हैं तो कस्टमर मजबूर है, जो नहीं लेके आने ताज़ी मरने हैं, जो लेके आने ताज़ी मरने हैं। इस हवाले से मजीद शहरी को कहना है कि ब्रायलर गोश्त की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। हम तब्दीली सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा हमारे हाल पर रहम किया जाए और महंगाई को कंट्रोल किया जाए ताकि गरीब आवाम का भी गुजर बसर आसानी से हो सके। कैमरामैन फैज फरीद खिच्ची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफ वाला। हाफिजाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गरीब आवाम महंगाई की चक्की में पिस कर रह गए। तब्दीली सरकार आवाम को रिलीफ करने में नाकाम नजर आते हैं। जफर इकबाल की रिपोर्ट। हाफिजाबाद जिला भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी शदीद परेशान दिखाई दे रहे हैं। जिला भर के तमाम यूटिलिटी स्टोर पर आटा, चीनी, घी की कीमतें कुछ इस तरह हैं कि चीनी 68 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 85 रुपए फी किलो कर दी गई है, जबकि घी 170 रुपए फी किलो से बढ़ाकर 260 रुपए कर दिया गया है, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 800 रुपए से बढ़ाकर 950 का कर दिया गया है, जिसके बहस कम आमदनी वाला तबका बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान हो चुका है। शहरियों का कहना है, हाफिजाबाद में जी ये जो यूटिलिटी स्टोर्स कायम किए गए हैं, वहाँ पर रिलीफ जो है वो सिर्फ नाम का दिया जा रहा है, इसके अलावा कोई रिलीफ नहीं है। घी की कीमत आप चेक करें तो वो 170 से रेज कर 270 तक पहुंच गई है। हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। यूटिलिटी स्टोर पर रोजमर्रा जिंदगी के इस्तेमाल होने वाली एशिया खुर्दोनोश की तमाम चीजें महंगी हो चुकी हैं, जिसकी वजह से महंगाई तारीख की बदतरीन सतह पर जा पहुंची है। आम आदमी महंगाई की चक्की में पीस रहा है और अब तो कुव्वत खरीद भी जवाब दे चुकी है। कैमरामैन वारिस अली खां के साथ जफर इकबाल, सच न्यूज़, हाफिजाबाद। टोबा टेक सिंह में एक दरख्त शहीद के नाम से शजरकारी मुहिम कामयाबी से जारी है। सुल्तान सिद्धू की रिपोर्ट। टोबा टेक में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए एक दरख्त शहीद के नाम से जारी शजरकारी मुहिम के तहत पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम में सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों, महकमा जंगलात के मुलाजमीन और भट्ठा मजदूरों ने शिरकत की। शजरकारी मुहिम के तहत ईंटों के भट्ठे के इर्द गिर्द 100 से जायद फलदार और सायादार पौधे लगाए गए। शजरकारी मुहिम में ईंटों के भट्ठे पर रिहायश पजीर मजदूरों के बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौका पर गुफ्तगू करते हुए समाजी वर्कर का कहना था कि शजरकारी मुहिम का मकसद पाक फौज के शहीदों को खराज तहसीन पेश करना था। तो इससे माहौलियाती आलूदगी कम होगी, जानवरों को शेड शेल्टर मिलेगा, इंसानों को शेड शेल्टर मिलेगा और बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख के एक अच्छे पाकिस्तानी बन सकेंगे। शजरकारी मुहिम के इख्तिताम पर नन्हे बच्चों में मुफ्त किताबें और पेंसिल्स भी तकसीम की गई। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक सिंह। सच ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। ढुडियाल में आवाम के लिए बनाए गए पार्क में पौधों की काट छांट और घास की कटाई का काम शुरू हो गया। आसिफ अली की रिपोर्ट। सच न्यूज की खबर पर एक्शन। ढुडियाल में बनाए गए अवामी पार्क में पौधों की काट छांट और घास की कटाई का काम शुरू कर दिया गया। वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल चकवाल चौधरी खुर्शीद बेग ने फौरी नोटिस लेते हुए ढुडियाल में बनाए गए अवामी पार्क में पौधों की काट छांट और घास की कटाई का अमल शुरू करा दिया। उन्होंने पार्क में आने वाले शहरियों को खसूसी पैगाम में कहा, आवाम से गुजारिश है कि जो लोग पार्क में सैर तफरी के लिए आते हैं वो पार्क की सफाई का भी ख्याल करें। अगर कोई चीज़ खाने की साथ लेकर आते हैं वो कचरा जो बचता है उसे वो
डस्टबिन बने हुए हैं उनमें रखें। शहरियों ने वाइस चेयरमैन जिला कौंसिल चकवाल चौधरी खुर्शीद बेग का पार्क की सफाई और उसकी खूबसूरती को दोबाला करने पर शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन शाहिद वारसी के साथ आसफ अली, सच न्यूज डोडियाल। डिप्टी कमिश्नर चकवाल ने सब्जी मंडी का दौरा किया है, रिपोर्ट करेंगे साकिब अब्बास। डिप्टी कमिश्नर चकवाल कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम ने सब्जी मंडी का दौरा किया और सब्जियों की बोली का जायजा लिया और क्वालिटी चेक की। उन्होंने मार्केट कमेटी इंतजामिया को हिदायत की कि वो रोजाना बोली के औकात में हाजिरी बरकरार रखें और आवाम को मार्केट रिलीफ की फराहमी तरजीह बुनियादों पर दें। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि सब्जियों समेत तमाम अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी, क्वालिटी और कीमतों को रोजाना चेक किया जा रहा है। आड़ती हजरात आवाम को रिलीफ की फराहमी में अपना कलीदी किरदार अदा करें। आगे दुकानदार गिरां फरोशी का इर्तिकाब हरगिज न करें, जबकि सार्फिन का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैमरामैन रजा तनवीर हैदर के साथ रजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, चकवाल। डेरा गाजी खान चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम वज़ीर आला पंजाब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फंड का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ दिया। मोहम्मद अली मीरानी की रिपोर्ट। डेरा गाजी खान चेयरमैन लैंड रिकॉर्ड सरदार अहमद अली दरीशक ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हम वज़ीर आला पंजाब उस्मान खान बुज़दार के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने फंड का रुख जनूबी पंजाब की तरफ मोड़ दिया। चीफ मिनिस्टर पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने साउथ पंजाब की तारीख में ये पहली दफ़ा है कि जनूबी पंजाब के जो फंड हैं वो जनूबी पंजाब के अंदर लगाए जा रहे हैं। जनूबी पंजाब के पसमानदा इलाकों में रिकॉर्ड तरक्की याफ्ता काम हो रहे हैं। पीटीआई हुकूमत ने अवाम से जो वादे किए थे वो हम पूरे कर रहे हैं। कैमरामैन नासिर सोमरो के साथ मोहम्मद अली मीरानी, सच टीवी, डेरा गाजी खान। पेशावर की तारीखी दरसगाह इस्लामिया कॉलेज में स्कूल क्रिकेट लीग का आगाज हो गया, रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर की तरह पेशावर में भी स्कूल क्रिकेट लीग का इफ्तिताह कर दिया गया। एक माह तक जारी रहने वाले इस टूर्नामेंट में स्कूलों की सतह पर 300 टीमें तश्कील दी गई हैं। वज़ीर आज़म साहब का एक ये ख्वाब है कि स्कूल क्रिकेट को हम प्रमोट करें और ये कुछ ही दिनों में इस ख्वाब को इन्होंने कैपिटलाइज किया और आज के दिन आपने देख लिया कि 300 से ज़्यादा टीमें इस स्कूल्स क्रिकेट टूर्नामेंट क्रिकेट चैम्पियनशिप में हिस्सा ले रही हैं और 4500 से ज़्यादा प्लेयर्स हमारे स्कूल्स के अंडर 16, अंडर 19 ये प्लेयर्स जो हैं आगे जाकर नेशनल टीम्स में हिस्सा लेते हैं। खैबर पख्तूनख्वा समेत कबायली अजला में मजमूई तौर पर 68 मुख्तलिफ मकामात पर मैचेस खेले जाएंगे। एक माह के दौरान 585 मैचेस का इनेकाद होगा। ये तो बहुत फायदेमंद है। मैं अंडर 16 में भी, लेकिन अगर इसमें परफॉर्मेंस किया तो अंडर 16 में भी सेलेक्ट हो जाऊंगा। इससे तो हमारा बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले शुक्र अदा करना चाहेंगे कि ये इवेंट हमारे लिए वो किया है, तो इससे हम अगर अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे इंशाल्लाह आगे जाएंगे तो ये हमारे लिए फ़ायदे के लिए। स्कूलों की सतह पर क्रिकेट लीग का इनेकाद जहां तालिबे इल्मों को बेहतरीन जिस्मानी सरगर्मियां फराहम करेगा, वहीं क्रिकेट का नया टैलेंट भी सामने आएगा। कैमरामैन असद आबिद के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। जनूबी पंजाब की पहचान रंगीन चारपाइयों की सकाफत को आज भी कमीर के कारीगर ने जिंदा रखा है। रंगीन चारपाइयाँ घरों में आज भी इंतहाई मकबूल हैं। लकड़ी को काट कर इसकी इंतहाई खूबसूरत अंदाज में खराश तराश के बाद खूबसूरत चारपाई रंगीन पाओं में तब्दील करते हैं। कमीर के कारीगर न सिर्फ चारपाइयों के पाए तैयार कर रहे हैं बल्कि जनूबी पंजाब की सकाफत को भी जिंदा रखे हुए हैं। कारीगर का कहना है कि यूं तो चारपाई घर की जरूरत है, लेकिन रंगीन पाँव वाली चारपाई घर हो या डेरादारी उसमें खूबसूरत रंग भरती है। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अफसन सयाल, सच न्यूज, कमीर शरीफ। जूही के नवाई इलाके गाजी शाह में पहाड़ों की बुलंदी से बहने वाला खूबसूरत चश्मा आज भी अपने रास्ते पर रवां तवां है। जूही के नवाई इलाके में पहाड़ों की ऊंचाई पर एक ऐसा खूबसूरत पानी का चश्मा वाक़या है जो सदियों से आज भी रवां दवां है। इस कुदरती नहर को बिंजू आबशार के नाम से जाना जाता है। मौसम सरमा में मकीनों समेत दूर दराज से सयाह बड़ी तादाद में चश्मे का रुख करते हैं, मगर बिंजू आबशार सड़कें, पीने के पानी और दीगर सहूलतें फराहम न होने की वजह से सियाहती मरकज नहीं बन सका। बहुत सारी यहाँ पे फसलें होती हैं और अफसोस की बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे कोई भी सहूलियत नहीं दी गई। यहाँ मुसाफिर खाना नहीं है, मुसाफिर खाना बना जाए, जैसे कि
यहाँ के जो भी घूमने आते हैं वो आराम से बैठ सकते हैं। शहरियों ने सिंध हुकूमत और महकमा सकाफत से मुतालबा किया है कि इस सियाहती मुकाम की जानिब भी तवज्जो दी जाए। शकरगढ़ के सिविल और सेशन कोर्ट में सहूलत सेंटर का आगाज कर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नारोवाल का कहना था कि फौरी इंसाफ की फराहमी में हायल हर रुकावट दूर करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेशन जज नारोवाल का कहना है कि अदालत आलिया लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बाद शकरगढ़ में सहूलत सेंटर बनाते हैं। मुजफ्फरगढ़ में रेस्क्यू 1122 वाहिद इदारा है जो बिला इम्तियाज शहरियों की खिदमत में पेश है, जिसकी कारकर्दगी खुद आप बोलती है, जो हर वक्त इंसानी जिंदगी बचाने के लिए कोशां रहता है। मोहम्मद इमरान असलम की रिपोर्ट। रेस्क्यू 1122 इंसानी खिदमत के लिए हर वक्त कोशां है। रेस्क्यू इदारा वो वाहिद इदारा है जो इंसानी खिदमत को हकीकी मायनों में सरंजाम दे रहा है। डॉक्टर हुसैन मियाँ का कहना था कि रेस्क्यू 1122 जान बचाने वाला इदारा है जो बिला तफरीक बिला ताखीर लोगों को एमरजेंसी सहूलियात मुयसर करता है। लिहाजा जिम्मेदार शहरी होने का सबूत देते हुए रेस्क्यू एम्बुलेंसेस को फौरी रास्ता दें ताकि बर वक्त जाए हादसा पर पहुँच कर ज़रूरतमंद लोगों को फौरी इमदाद फराहम की जा सके। डॉक्टर हुसैन मियाँ ने सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुजफ्फरगढ़ शहर के अंदर 2009 से रेस्क्यू 1122 की सर्विस जो है वो आवाम के लिए हाजिर है। इस दौरान हमने देखा है कि एमरजेंसीज़ की रेशो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें जो ज़्यादा पोर्शन है बड़ा वो मेडिकल एमरजेंसीज़ का है। तकरीबन 60 से 65% जो है वो मेडिकल एमरजेंसीज़ होती हैं और तकरीबन 25% जो हैं वो केसेस जो हैं वो RTE केसेस हैं। उन्होंने अवाम से दरख्वास्त करते हुए कहा कि डिस्टर्बिंग कॉल ना की जाएं जो हमारे लिए निहायत परेशानी का बायस है। शहरियों को इस मामले में जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए क्योंकि इनकी बिला वजह और गैर ज़रूरी कॉल किसी हकीकी एमरजेंसी कॉल में रुकावट का सबब बन सकती हैं जो कि एक संगीन जुर्म है। इस वजह से किसी की भी जान जा सकती है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज़, मुजफ्फरगढ़। इलाकाई खबरनामों से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।